A very good evening to one and all present over here. I, Arpita, from the ISEC fraternity, welcome you all to the first ever masterclass series with its launch topic, The Art of Communication. ISECT is India's leading educational, training, and service network with an unrivaled spread of more than 20,000 multipurpose centers across 28 states and 8 union territories of the country. Established in 1985, ISECT has been continuously working towards its mission to reach out to the remotest corner of India and promote ICT-based training and services to empower people, generate employment, and connect employable people to existing employment opportunities and unfold entrepreneurship opportunities for the youth to create an inclusive society. ISECT as a group of institution has ventured in every stage of education, be it preschool education, school education, higher education, and vocational education. Through the plethora of programs, academies, and platforms, we have trained over 1.6 million people, generated over 12,000 rural entrepreneurs, created employment avenues within the ISEC network for more than 50,000 people, and empowered the lives of over 3 million people through innovative services. Our unique and scalable form of IT penetration and popularization in India in a pilot study conducted by World Bank in collaboration with IIM Ahmedabad. With this, we launch our first masterclass series. Speaking about masterclass, it is a part of online learning activities that would benefit the target group comprising of vocational coordinators, vocational trainers, and state teams. The knowledge sharing would occur twice or thrice on a monthly basis. The main objective of Masterclass is to target the untapped potential and gain knowledge of the innovative technologies and ideas that are trending, which would help us in incorporating them and gaining competitive advantage. It is through the masterclass that the educators act not only as audience, but also as creators of more innovative content with collaboration of their fellow colleagues. Introducing the speaker of today's session is Mr. Rajiv Mishra, an marketing, advertising guru, motivational speaker, and poet. Mr. Rajiv Mishra is an IIMA BSS Campion School St. Paul Indore alumni who is a marketing, advertising, and business development professional with more than 30 years of experience with top-notch national and international brands across many states, cities, and countries, wherein he brings precious and customized value additions in these areas. He is an academic enthusiast who indulges passionately as a guest lecturer, motivational speaker, soft skill trainer across many institutions on diverse subjects. Apart from this, Mr. Mishra is also a poet, writer, and even a talk show host and anchor. With this, I now request Sir Mr. Abhishek Gupta to please introduce the panelists and to the guest speaker. Thank you, sir. Thank you, Arpita, for the wonderful introduction about masterclass and today's speaker. Welcome, Rajiv sir, for today's sessions. And I welcome on behalf of ISEC fraternity for this masterclass. So this is first of the masterclass, and we initiated this masterclass with the objective of to share the knowledge and share the best practices across the industries and with our trainers and the larger fraternity who are in educational and skill development domain. So, sir, as in today's sessions, the topic, the art of communication. So I heard many times Rajiv Mishra sir. So I am fortunate to share the stage with Rajiv sir for today's session. So communication play a very important part in our life. As we all know, it is not only on professional life, but also as well in the personal capacities, your friend circle, your relations, your companies, your societies. So every relations we built up only through the communication. So it is very important for us.
And in the time of pandemic, it is more important for us since all the classes, all these activities are also happening in the blended mode. So before much ado, I just invite Rajiv Misra sir to share the to talk on today's topic, and I also request all the participants to use the Q&A panel to share your questions and queries. And so we will take all the question and query, and we will take the valuable inputs with today's speaker Rajiv sir at the end of the sessions. So welcome all of you. Over to you, Rajiv sir. सर म्यूट हैं आप. Corrected. So second effort में शुरू हुआ technical snag after so many programs also it happens. So thank you Arpita, thank you Abhishek sir for the introduction. Or thank you, I mean thank you ISEC for two things. Number one, starting this masterclass concept जो मैंने सुना अभिषेक सर ने जो मुझे समझाया वो बहुत ही अमेजिंग है. मतलब इस तरह का इनोवेटिव इनिशिएटिव आईसेक की मैंने बहुत सारे देखे हैं, इसलिए मुझे कोई बहुत सरप्राइज नहीं है कि आईसेक इज डूइंग अनदर वन स्पेशल वन हियर. सो कांग्रेचुलेशंस टू आईसेक एंड टीम आईसेक फॉर स्टार्टिंग समथिंग न्यू अगेन. और आप सभी जितने भी ट्रेनर्स और अलग अलग कैटेगरीज के ट्रेनर्स हैं, सभी ट्रेनर्स हैं यहाँ पे, आप सभी का बहुत स्वागत है. गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सभी को. और एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की बात बहुत छोटी सी शुरू हुई कि अभिषेक सर ने कहा कि यार पहला सेशन करना है तो सर कुछ आइडिया दीजिए क्या करें. तो मैं यूजुअली कोई ऐसी बात कहता है तो मैं कहता हूँ यार कम्युनिकेशन से ही शुरू करते हैं. कहीं भी इस तरह की बात होती है तो हमारे जीवन में अभिषेक सर बता रहे थे कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, हर पहलू में इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ. मैं एडवर्टाइजिंग से आता हूँ, बेसिकली मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग से. तो मैं अपनी कहानियां उन्हीं के माध्यम से सुनाता हूँ. तो आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिलेंगे, ये वादा है. और एक आज का जो सेशन नहीं है, एक कहानी का प्रारूप है, यूं समझ लीजिए, एक छोटी सी कहानी unfolding before you. So if I can share the screen now, can I have the admin right? Sure sir, you can share. Okay, share everything. So here I go. Wait. तो हम एक टेक्निकल चेक करते जाएंगे जैसे जैसे हम शुरू कर रहे हैं कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, साउंड आ रहा है कि नहीं, वो मुझे बताते जाइएगा. विजिबल सर. तो क्लियरली विजिबल? यस सर. एंड मेरी आवाज क्लियर है, राइट? यस सर. ओके, सो दिस इज अबाउट मिस्टिक 7. दिस इज माय स्टूडियो. बहुत साल काम करने के बाद, प्रोफेशनल दुनिया में काम करने के बाद, जब मेरी आखिरी कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा था वो बंद हो गई, तो एक कीड़ा काटा हुआ था कि कुछ अपना काम करना है. तो मिस्टिक 7 की कहानी वहां से शुरू होती है जो बॉम्बे में कंसेप्चुअलाइज हुआ. और हम अपने आप को मार्केटिंग मैजिशियंस कहते हैं. वो इसलिए कहते हैं कि पता है जिंदगी में जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम एक बहुत बेसिक सी चीज भूल जाते हैं कि जिंदगी का जादू भूल जाते हैं. ट्रैफिक में फंस गए हो कि कहीं गली में से स्कूटर निकालने की जगह मिल जाए और जादू से मिल जाए, मैं जल्दी पहुंच जाऊं. पार्किंग नहीं मिल रही है कार की और कहीं गलती से कोई पार्किंग खाली हो जाए, मुझे मिल जाए. मैं लाइन में खड़ा हूँ, दूसरा काउंटर बंद है, जल्दी से दूसरा काउंटर खुल जाए. ये जिंदगी के छोटे छोटे से जादू है. पर हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, हमें सिखा दिया जाता है कि ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये तो बचपन की है. बट कीप दैट जादू अलाइव इन यू नो, आई मीन कीप दैट होप ऑफ जादू अलाइव. दिस इज द मैजिक ऑफ लाइफ. सो वी क्रिएट मैजिक ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग इज अबाउट मैजिक. कुछ नया करना, कुछ स्पेशल करना, कुछ ऐसा करना कि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो जाए और उसको खरीदने के लिए उत्सुक हो जाए. आज की कहानी करने से या किसी भी कहानी को, कोई भी प्रेजेंटेशन के पहले मैं एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट सबसे करता हूँ. ये कोई रिलीजियस, इसका कोई एंगल नहीं है प्लीज. ये सिर्फ एक संस्कार की बात है कि माँ सरस्वती इज दी सिंबल ऑफ एजुकेशन. तो माँ सरस्वती को ध्यान में रखते हुए आज आप जिंदगी के अपने सारे टीचर्स को एक बार थैंक यू बोल दीजिए मन ही मन में. जस्ट अ ग्रैटिट्यूड, सिंपल ग्रैटिट्यूड यार, कि पता है टीचर वो चीज है जो आर्किटेक्ट है वो घर बनाता है, राइटर पोइट्री लिखता है, साइंटिस्ट डिस्कवरियां करता है, पर टीचर इन सबको बनाता है. टीचर डॉक्टर बनाता है, टीचर इंजीनियर बनाता है, टीचर हर प्रोफेशन का स्टूडेंट बनाता है. तो जस्ट टेक अ मोमेंट, आंख बंद करके जस्ट से थैंक यू.
आपका कोई स्पेशल टीचर हो, आपके पेरेंट्स आपके टीचर हैं, आपका कोई दोस्त आपका टीचर हो, जस्ट से थैंक यू टू देम। हम थैंक यू बोलना अक्सर भूल जाता है, तो जस्ट अ मोमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल आवर टीचर्स हु हैव बीन द बीकन ऑफ अ लाइफ, जिन्होंने हमें, जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं, चाहे छोटे या बड़े किसी भी लेवल पे। मिस्टिक 7 एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्टूडियो है, मैंने आपको बताया हम जादू बनाते हैं यहाँ पे। मेरे बारे में अभिषेक सर और अर्पिता ने बहुत सारा बता दिया है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि मुझे बहुत अमेजिंग लोग और ब्रांड्स मिले काम करने के लिए। Starting my career as a sales professional, moving into product, moving into marketing, moving into advertising, traveling a lot of, बहुत सारे शहर ट्रैवल किए, बहुत सारे स्टेट्स ट्रैवल किए, इंडिया में ट्रैवल किए, बाहर किए, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स और इंडस्ट्री के साथ काम करने का मौका मिला। और जब मैंने अपना स्टूडियो शुरू किया तो और इंडस्ट्रीज ऐसी जुड़ती गई जिनसे मुझे सीखने को मिला। और जब भी आप जैसे लोगों के साथ मिलता हूँ तो यही एक्सपीरियंसेस आपसे साझा करने की कोशिश करता हूँ। और ये कुछ नहीं है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो कोई ऐसा लिखा हुआ वो नहीं है, बट ये मेरे तजुर्बे हैं जो मैं शेयर करता हूँ कि जो आपके काम आ जाए। मेरा एक डिस्क्लेमर है बहुत क्लियरली कि जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ वो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। आप कल है ना मुझे सू मत कर देना कि सर आपने कहा था मैंने ट्राई किया और ये नहीं हुआ। प्लीज इनोवेट। पर मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ आप ट्राई करेंगे, अपने तरीके से ट्राई करेंगे तो जरूर सक्सीड होंगे। मैं यहाँ पे जो भी ऑडियो वीडियो मटेरियल, जो भी एड्स, फिल्म्स जो भी यूज करने वाला हूँ, उनका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है। वो सिर्फ आज इस एजुकेशन सेशन के यूज के लिए है, उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस सेशन का एजुकेशन एकेडमिक पर्पस है, वही है। बहुत सिंपल सी चीज है कि अपना फोन बंद कर लीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगले 1.25 घंटे में कुछ नहीं होने वाला, और जो होगा वो 1-1.25 घंटे बाद मैनेज हो जाएगा। सो प्लीज डोंट वरी, 1.25 घंटे के लिए अपना फोन बंद कर लीजिए, ध्यान लगा लेते हैं। आपको पता है ध्यान वर्ड मीन्स फोकस। हम कहते हैं ना, वो ये जो बड़े बड़े गुरु हैं ये सब कहते हैं ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, राइट? हमने ये सब वर्ड सुने होंगे। ध्यान इज व्हाट? फोकस। फोकस मीनिंग एक वक्त में एक काम पे ध्यान लगा लो। तो इस वक्त हम ध्यान यहाँ लगा लेते हैं। और जब हम ये सेशंस ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, रूबरू करते हैं, तो काफी सारा बहुत मजा आता है। मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स भी होती हैं, और हो सकता है हम कभी मौका मिले तो आगे करें, एंड आई शेयर चॉकलेट्स विद यू। पर क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा। जो आपके मन में शंका हो जरूर पूछ लीजिएगा, मुझसे, अभिषेक सर से, अभिषेक सर की टीम से, जिससे पूछना हो जरूर पूछ लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इस 1.25 घंटे के लिए मैं आपका कोच हूँ, ठीक है? और मुझे भी कोच की जरूरत पड़ती है, सचिन तेंदुलकर को भी कोच की जरूरत पड़ती है, और कपिल देव को भी पड़ती थी, और रोनाल्डो को भी पड़ती है। हर इंसान को कोच की जरूरत पड़ती है। कोच और टीचर में फर्क वही होता है कि कोच आपके इनहेरेंट टैलेंट को, आपके स्वाभाविक हुनर को निखारता है। टीचर आपको एक बेसिक एजुकेशन देता है और कोच आपके हुनर को निखारता है। तो मैं आज आपको आप ही के हुनर को निखारने का प्रयास करने वाला हूं, जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपको आता है। वो कहीं जैसे ना हनुमान जी को एक वो मिला हुआ था श्राप कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे, फिर एक मोमेंट पे उनको याद दिलाया जाएगा। तो इसी तरह मैं आपको आपकी शक्तियां आज याद दिलाने वाला हूं। याद रखिए, मेरी बाकी बची जिंदगी का आज पहला दिन है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है? तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं एक कमिटमेंट कर रहा हूं कि आज से बची हुई जिंदगी के लिए मैं एक बेहतर इंसान होऊंगा। मेरे थॉट्स बेहतर होंगे, मेरे डिसीजंस बेहतर होंगे, मेरे एक्शंस बेहतर होंगे, राइट? जो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब हम आगे की जब बात करें तो आई विल बी अ बेटर पर्सन स्टार्टिंग नाउ। आई विल अपग्रेड माई सेल्फ। सो वेलकम टू द मास्टर क्लास, द फर्स्ट लाइव मास्टर क्लास। मुझे बताया गया है कि ये फेसबुक पे है और शायद इंस्टा पे भी है, और सभी जगह ये लाइव क्लास चल रही है, और आप बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तो हम इस मास्टर लाइव क्लास का शुरुआत करते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन वाकई एक आर्ट है। आपको पता है जो डिप्लोमेट्स इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप हैंडल करते हैं वो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी बातें बिना कहे बयान कर देनी पड़ती हैं। उनका काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि नाराज भी नहीं कर सकते और दोस्ती भी नहीं कर सकते, तो दे हैव टू मैनेज ब्यूटिफुली। तो इसी तरह आज हम ऐसी कुछ चीजें कवर करेंगे जो ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की पहली बेसिक सीढ़ी से करेंगे शुरुआत। और पहली बेसिक सीढ़ी है, वियतनाम के एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क है जिन्होंने काफी किताबें लिखी हैं, उनके कोट्स बहुत फेमस है। उनका एक कोट मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि एक बार आप खुद से कम्युनिकेट करना सीख जाएं तो फिर आप सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अगर खुद से ठीक से बात करें, आप कोई बात खुद को ठीक से समझा सकें, आप कोई भी चीज जो दूसरे को समझाने वाले हैं वो पहले खुद पे ट्राई कर लीजिए, और एक बार आपकी खुद से एक वेवलेंथ जम गई कम्युनिकेशन की, फिर आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज गेट इनसाइड एंड देन गेट आउटसाइड। पहले खुद से बातचीत करके देखिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए कोई भी चीज। और ये रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कोई नया शब्द मिल जाए, कोई नया फ्रेज मिल जाए, कोई नया कहने का तरीका मिल जाए, प्रैक्टिस करिए। द लकियर, ऐसी एक कहावत है, टाइगर वुड्स का अगर नाम सुना हो, गोल्फ खेलते हैं, बहुत फेमस है वो, उनका एक बहुत फेमस कोट है, द हार्डर आई प्रैक्टिस द लकियर आई गेट। तो मैं जितनी प्रैक्टिस करता हूँ उतना लकी हो जाता हूँ। तो हर हमारे बैट्समैन, सचिन, रोहित, वीरू, सहवाग, जो भी हो, इन सब के ऊपर वही लागू होता है। और अब तो हमारी लड़कियां कमाल कर रही हैं, लुक एट देम डूइंग अमेजिंगली वेल इन ऑस्ट्रेलिया। जब हम रूबरू खुद से बात करने की बात करते हैं तो हमारे जीवन में रोजमर्रा का ये एक इशू है कि कोई हमसे जब रास्ता पूछता है तो हम लेफ्ट जाने के लिए राइट हैंड दिखा रहे होते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। कोई आपसे जब रास्ता पूछता है तो आप उसको अपनी समझ से रास्ता बता रहे होते हैं, बजाय उसके कि वो कहाँ खड़ा है, वो कहाँ खड़ी है, उसको किस तरफ जाना है, क्या फेसिंग है, उसका लैंडमार्क क्या है। आप हमेशा अपनी पोजीशन से बता रहे हो। अगर आप ये पूछें कि आप कहाँ हो, किस लोकेशन पे हो एग्जैक्ट हो, और आपको क्या दिख रहा है, तो आप उसको डायरेक्शन कहीं आसानी तरीके से बता सकते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जहां आप खड़े हैं रास्ता वहां से शुरू नहीं होता, जहां कोई और खड़ा है रास्ता वहां से शुरू होता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, जब आपको कोई टाइम देता है, पूछता है कि भाई कितनी देर में आओगे, तो आप बहुत कैजुअली बिना सोचे समझे बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा, बहुत मजे की बात है, हम बड़े शहरों से जब छोटे शहरों की तरफ जाते हैं तो ज्यादातर ये जो टाइम का अंदाजा है ना, ये बढ़ता ही जाता है। हर चीज एक अंदाजे में कही जाती है। हम ये एस्टिमेट ही लगाते हैं कि हमारे को यहाँ से जाएंगे तो इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है, हम मन ही मन कैलकुलेट करना है, कागज पे नहीं लिखना उस पर ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हम कितनी देर में वहां पहुंच जाएंगे, और हो सकता है रास्ते में कहीं कोई ट्रैफिक में फंस गए तो कितना टाइम लगेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब अगली बार आप कहें बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती। वो सिर्फ एड्स में बताते हैं, मैगी को बनाने में भी 10 मिनट लगते हैं ढंग से। तो जब भी आप अगली बार कहें कि 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 2 मिनट में पहुंच रही हूँ, प्लीज मत कहिए। आप 2 मिनट में पहुंच भी रहे हो ना तो कहिए 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। उसको 10 मिनट का एक्सपेक्टेशन देखिए, अगर आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो वो ज्यादा खुशी होगी, बजाय आप 2 मिनट बोल के अगर आप 10 मिनट में पहुंचेंगे, वो आपका इंप्रेशन बिगड़ेगा कि आप 2 मिनट का, आपका टाइम का कोई अंदाजा ही नहीं। तो प्लीज ये दो चीजें हैं, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करिए। तो कोई डायरेक्शन पूछे उसके रास्ते से बताइए, और कोई जब आपसे टाइम का कमिटमेंट पूछे तो अंदाजा ठीक लगा के बताइए। ऐसे ही जो मन में आया वो नहीं बोला जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन का गोल यही है कि सही इंफॉर्मेशन कन्वे करना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग सामने वाले को पहुंच जाए, चाहे वो एक इंसान हो चाहे ग्रुप में हो। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ से नहीं है, उनकी समझ से है। हमको, क्योंकि हम समझा रहे हैं तो हमें तो बहुत क्लियर है, हमारे मन में हम तो बहुत क्लियर है ना, लेकिन सामने वाले की समझ से समझाना है। इसीलिए जो वियतनामीज मॉन्क एंड थिक नैट हान, जो वो कहते हैं कि पहले खुद पे काम कर लो, पहले खुद का कम्युनिकेशन, खुद से रूबरू बात कर लो, फिर आगे समझाना, वो बहुत जरूरी है। टू गेट इट राइट फॉर योरसेल्फ। इंफॉर्मेशन का मतलब है किसी को इंफॉर्मेशन देना, अब उसके आगे वो जो करे सो करे। आपने इंफॉर्मेशन दे दी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपने उसकी मदद की।
प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक बातचीत पूरी हुई जिससे उसको एक पूरा रिस्पॉन्स मिला, जिसको एक समझ मिली। इंफॉर्मेशन में एक सूचना मिली, आपने सूचना दी कि अच्छा ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन दे दी, आप यहाँ खड़े हैं, कोई रास्ता ही बताना है क्या, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आगे चले जाइए, आगे पान वाले से पूछ लीजिएगा, ये सूचना हो गई। पर अगर आपको बाकी रास्ता दिखाना है और पूरा समझाना है, तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि वो उनकी समझ से हो। तो ये बहुत फर्क है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। घर के बड़े जब बच्चों को आंखें दिखा देते हैं तो वो आंखों के इशारों से समझ जाते हैं कि अभी पानी का ग्लास लाना है, यहाँ से उठ के चले जाना है, या क्या रिएक्ट करना है। ये आंखों से ही सारे कम्युनिकेशन हो जाते हैं। जब कोई घर में मेहमान आते हैं और कोई कह देता मीठा ले आओ और घर में मीठा नहीं होता, तो वो आंखों के इशारे समझाते हैं कि अच्छा नहीं है, कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। ये सारे नॉन वर्बल हैं और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये ऐसा नहीं कोई मैं आपको स्पेशल चीज बता रहा हूँ, यू लिव एवरी डे ऑल दीज थिंग्स। जो आप कह रहे हो, जो आप लिख रहे हो, जो आप देख रहे हो, और जो हम देखते हैं वो तो बहुत कमाल का देखते हैं, क्योंकि हम देखकर भी उसको वैसे करते हैं जैसे हमने उसको देखा। हमारा ब्रेन जो है ना 60,000 टाइम्स फास्टर काम करता है विजुअल्स के ऊपर टेक्स्ट के कंपैरिजन में। जब हम कहीं टेक्स्ट भी लिखा हुआ देखते हैं ना, तो उसको हम पहले विजुअल के रूप में देखते हैं। जैसे कोई ब्रांड्स हैं हमारे, तो हम उनके जब नाम याद कर लेते हैं या हमें उनको पसंद आ जाते हैं, तो वो इमेज याद रहती है हमें, उनको अल्फाबेट्स याद नहीं रहते, हम उसको एज अ इमेज देखते हैं। 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन इज विजुअल। तो प्लीज रिमेंबर, ये जो हमारा विजुअल है ना, ये वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टेक्स्ट भी देखते हैं, उसको विजुअली इंटरप्रेट करते हैं। 40% ऑफ पीपल रिस्पॉन्ड बेटर टू विजुअल देन इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट, विच इज ट्रू, क्योंकि हम विजुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। और जब हम देखते हैं और समझते हैं, वो तो बहुत ही अलग चीज है। वो जो देखते हैं और समझते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा आपको एक एड दिखाते हैं। और अभिषेक सर प्लीज बता दीजिएगा जब आवाज आ जाए क्लियरली और वीडियो आ जाए। Patient has a fractured fibula. Given सर क्लियर है? Yes, sir. आवाज भी आ रही है ना? Yes, sir. ठीक। mild sedative, so he could be able to go on tomorrow. Daddy's gonna be so excited. All good. That killed him. Paging, Doctor. Look at the cute dog. Hey, kid. You got to get down. Come on. Hi there, folks. We hope you've enjoyed your flight today. We're beginning our descent into... तो हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। और हमें इतनी जल्द, एक मिनट, हाँ जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये स्क्रीन शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ये ऊपर वाला बार, हाँ हो गया, डन।
एक मिनट, ओके, here we are. तो जब हम किसी को देखते हैं तो बहुत जल्दी को जज कर लेते हैं, और ये बहुत कॉमन सी चीज है कि when two women meet, two girls meet, वो विद इन सेकेंड्स एक दूसरे का असेसमेंट कर लेते हैं, उसने क्या पहना है, क्या ज्वेलरी है, क्या कलर है, क्या शूज है, क्या मेकअप है, क्या सारी चीजें, विद इन अ फ्यू मोमेंट्स ये सारा आंखों ही आंखों में बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सारा कम्युनिकेशन हो जाता है। और ये रोज होता है, ये आए दिन ऑफिस में होता है, घरों में होता है, पड़ोसी के साथ होता है, एवरीवेयर इट हैपेंस। और ये बहुत शार्प कम्युनिकेशन होता है। अच्छा ये नया है, अच्छा अरे वाह हेयर स्टाइल, इसने क्या लगाया है, ये कौन सा परफ्यूम है, एवरीथिंग हैपेंस विद इन अ फ्यू सेकंड्स। और यही जब बॉयज के या मेन की बात होती है तो बहुत डल सा है रिएक्शन, कुछ खास होता नहीं है, अच्छा कैसे हो वगैरह टाइप्स, ऐसा रह जाता है। दीज आर नॉन वर्बल अनस्पोकन कम्युनिकेशन व्हिच हैपेंस इन लाइफ। और जो हमारा बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन है, हमारा पोस्चर कैसा है, हमारे हाथ के मूवमेंट्स कैसे हैं, हम कैसे हमारे एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, हमारा आई मूवमेंट क्या है, आई कांटेक्ट है कि नहीं है, हमारा टच है, जैसे कोई दोस्त मिला तो उसको हग किया या कैसे किया, क्या है। यूजुअली ये देखना आप ध्यान से, जब लड़कियां मिलती हैं दो दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ देंगी और एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठी रहेंगी। और यू नो दीज आर सिंपल जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेजेस, जहां बिना कहे बहुत सारी बात की जाती है। यही है जो हमें कम्युनिकेट करता है कि जो वर्ड्स हैं उनका महत्व तो सिर्फ 7% है, जो बॉडी लैंग्वेज है उसका 55% है। और इनफैक्ट जब हम बात करते हैं तो हमारी टोन कैसी है, दैट इज अबाउट 40%। दैट मेक्स अ डिफरेंस। हम क्या कहते हैं उस पर फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे कहते हैं उस पर फर्क पड़ता है। अगर किसी को बोला जाए कि आई हेट यू प्यार से भी तो उसका इम्पैक्ट होता है, इट इज ऑल हाउ यू से इट। और किसी को ऐसा रूडली आई लव यू बोला भी जाए तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो हम कैसे कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आप खुद अपने तजुर्बों में, रोजमर्रा की जिंदगी में आप ये देखते होंगे कि आप कोई चीज कैसे कहते हो, वो मैटर करता है, आप क्या कहते हो उससे कहीं ज्यादा। और यही स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, यही तो कम्युनिकेशन है। इसी कम्युनिकेशन में सारा खेल शुरू होता है एक मसाले से। ये जो कम्युनिकेशन की रेसिपी है ना, ये जो कम्युनिकेशन का बढ़िया बिरयानी बना रहे हो आप या पुलाव बना रहे हो आप, ये जो है इसका एक बेसिक मसाला है और वो है द आर्ट ऑफ लिसनिंग। अगर आप सुन नहीं सकते तो आपके साथ मेजर चैलेंज है। आपको इस स्किल पे काम करना बहुत जरूरी है। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप अच्छा बोल नहीं पाएंगे। अच्छा बोलने के लिए, सही बोलने के लिए, साफ बोलने के लिए, इंपैक्टफुल बोलने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। और यह आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मसाला है। आपने अगर अपनी ऑडियंस को एंगेज नहीं किया, आपने अगर अपनी ऑडियंस की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने अगर अपनी ऑडियंस को लिसनिंग, अपने कान नहीं दिए ढंग से, तो आपकी कम्युनिकेशन इंपैक्टफुल नहीं होगी। ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, और इन 7 चीजों से क्या आप उनको इंप्रूव करेंगे। आपको पता है आपका स्मार्टफोन आपसे ज्यादा स्मार्ट हो गया है। आप मुझे मानेंगे नहीं इस बात पे, लेकिन बाकी आपसे स्मार्ट हो गया है। उसकी ऐप रन करने के लिए आपको उसको हफ्ते में एक बार अपग्रेड करना पड़ता है, नहीं तो वो चलता नहीं है, नहीं तो वो स्मार्ट नहीं रहता। क्या आप प्रूव करेंगे कि आप उससे स्मार्ट है? क्या आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे कि आपने पिछले एक हफ्ते में अपने आप को अपग्रेड किया था? तो ये आपके अपग्रेडेशन का सवाल है। अब स्मार्टफोन से आपका कंपटीशन है कि क्या आप अपने को अपग्रेड करने वाले हैं। तो प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू बी अटेंटिव। यू हैव टू बी अटेंटिव का मतलब है फिर वही ध्यान, ठीक है। मैं हर ध्यान वो चीज है, ये जो मेडिटेशन और जो गुरु कहते हैं ना ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, ध्यान कुछ नहीं, बस फोकस है। उस एक वक्त जिस काम को आप कर रहे हो उस पे आपका ध्यान चाहिए। अगर आप उस चीज पे ध्यान लगा रहे हो, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं यू विल एक्सेल इन दैट जॉब, क्योंकि उस ध्यान में आपको रास्ते भी निकलेंगे मुश्किलों के। अगर नहीं है तो चलिए, आप जब बात कर रहे हैं तो खुले वाले सवाल पूछिए। कोई बात नहीं समझ में आ रही है, किसी बात को याद रखना है,
कोई मुझसे कह रहा है कि भाई आज से 23 तारीख को आपका एक प्रोग्राम फिक्स किया जा रहा है, तो मैं ये वर्ड रिपीट करता हूं कि 23 तारीख को आप ये प्रोग्राम फिक्स कर रहे हो, उस दिन कौन कौन आ रहा है। मैं 23 तारीख पे इंपॉर्टेंस देके बात करता हूँ, जिससे मुझे वो बात ज़हन में रह जाए, वो मुझे याद रह जाए, वो रीइंफोर्स हो जाए। और फिर मैं सवाल पूछता हूँ, प्रोबिंग क्वेश्चंस, कि अच्छा इसमें कौन कौन आएगा, अच्छा ये क्या है, इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कितने बजे से कितने बजे तक होगा। तो मैं इस कॉन्वर्सेशन में, इस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं बोलने वाले के साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं अपनी समझ के लिए वही उनकी कही बातों को सवाल के रूप में दोहरा के अपनी समझ क्लियर कर रहा हूं। और फिर जब मेरी समझ क्लियर होगी तो मैं एक क्लैरिफिकेशन भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक क्लैरिफिकेशन भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्या ये मैंने सही समझा, क्या ये बात सही है, और उसको पैराफ्रेज कर रहा हूं। मैं अपनी फीलिंग्स रिफ्लेक्ट कर रहा हूं कि अरे वाह कितनी बढ़िया बात है, उस दिन तो मैं फ्री था, अच्छा हुआ आपने कह दिया, और पता है मैं उसी टाइम पे आप पहले आ गए, वरना मैं कुछ और प्लान कर लेता। सो आई एम जस्ट रीइंफोर्सिंग ऑल दीज थिंग्स, और आखिरी में मैं समराइज कर देता हूं। ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, ये आपको पता है, मैं कोई आपको कुछ नया नहीं बता रहा। मजेदार चीज ये है कि इस दुनिया में सारा ज्ञान अवेलेबल है, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, गीता, हर जगह इतनी चीजें लिखी हैं, आपको सब पता है। गूगल बाबा है अब तो आपके पास, आपका सबसे बड़ा गुरु है गूगल बाबा, वो आपके पास है। बस हम इन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते, ये हमें प्रैक्टिस करनी है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम बेहतर इंसान बनेंगे, और हमारे स्मार्टफोन को प्रूव करके दिखाएंगे कि हम उससे ज्यादा स्मार्ट हैं। और किसी भी अच्छी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है गुड लिसनिंग। आप कुछ भी, आप आपके दोस्त से मिलो, आप किसी रिश्तेदार से मिलो, आप किसी अजनबी से यूं ही मिल जाओ किसी दुकान पे खड़े हुए, आपको वो कॉन्वर्सेशन याद रहेगी जहां या तो आपने सुना या उसने सुना, दोनों। और कोई आपकी बात जब सुन रहा हो और आप उसमें इन्वॉल्व हो, तो वो आपको हमेशा याद रखेंगे कि आपने ध्यान दिया। सुनना बहुत मुश्किल काम है, हमें पता है सुनना चाहिए, लेकिन सुनना बहुत मुश्किल है। यू नो वो बहुत बेसिक सी कहावत है, कान दो दिए जबान एक दिए। फिर भी है ना, हम कान कम यूज करते हैं, जबान ज्यादा यूज करते हैं। तो हमें कान पे फोकस चाहिए, ये दो दिए हुए हैं, प्लीज इधर से सुनो, इधर से निकालो मत, दोनों से सुनो और यहां लेके जाओ। Get it in your head and then get it in your heart wherever it is necessary, not just the head. और जब आप सुन रहे हैं ना, तो समझने के लिए सुनिए, सुनने के लिए मत सुनिए। अच्छा वो कह रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं है, मैं कहीं और उलझा हुआ हूँ, मेरे वेब ब्राउजर मेरे दिमाग में खुले हैं, मैं तो कल की पिकनिक प्लान कर रहा हूँ और परसों का ट्रैवल प्लान कर रहा हूँ, और सामने वाला बोले ही जा रहा है। मत करिए। अगर आपका ध्यान नहीं है ना, उसको बोल दीजिए यार अभी मूड नहीं है, यार अभी ध्यान नहीं है, अपन 10 मिनट बाद मिलते हैं, या तो मुझे फोन करना, या सर अभी अभी मैं नहीं फोकस कर पा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक गिलास पानी पी के आता हूँ। जब आप फॉर्मल मीटिंग्स में भी बैठे हो और कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, टेक अ लिटिल ब्रेक। आई एम टेलिंग यू दैट विल गिव यू रिस्पेक्ट, दैट विल गेट यू रिस्पेक्ट। बिना ये कहे कि मेरा ध्यान नहीं है, आप सिर्फ छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, मुंह धो के आ जाइए। और मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, क्योंकि ये सब होता है रियल लाइफ में, कि बड़ी बड़ी बोर्ड मीटिंग्स में बैठे हो और वहां बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक प्लान चल रहा है और फोकस ही नहीं है, आ ही नहीं रहा फोकस। और जब फोकस नहीं आ रहा तो एक स्ट्रैटेजिक अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा जो आना चाहिए, जो मुझसे एक्सपेक्टेड है एज अ क्वालिफाइड पर्सन। और सब जानते हैं कि मुझ में टैलेंट है, सब जानते हैं आप में टैलेंट है, आप दे सकते हो, लेकिन मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, तो मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें सुनना है, समझने के लिए, कुछ कहना है, जब वापस कहने के लिए जवाब देना है, ऐसा नहीं है, या सिर्फ सुनने के लिए सुनना है, ऐसा नहीं है। और इसका बहुत अच्छा एक पुराना खेल है, जो अगर हम होते साथ में तो मिलके खेलते, पर आपको वर्चुअली खिलाते हैं ये खेल। अभिषेक सर, ऑडियो वीडियो अभी तक सब क्लियर है ना? That's on video. Yes, sir. Okay. All right, so let's have Matthew then start. Go, Matt.
Oh my god. Oh no, it's I don't know. Wait, what was the second? Ah, crap, I forgot it. No talking. Really? Okay, so what do you think it is? Okay. And let me get a picture of what the word was or the sentence was. तो कितनी सिंपल सी चीज थी ये। आए दिन कॉर्पोरेट ऑफिस में हम खेलते रहते हैं। इसको एक्चुअली पुराना नाम है चाइनीज विस्पर्स, लेकिन इसको एक्चुअली रियल नाम है टेलीफोन। अमेरिका में इसको टेलीफोन कहते हैं। तो उसने कहा, उसको सिर्फ इतना बताया गया था कि मैं साइकिल चला रहा था और गिर गया, और वहां से शुरू होके हम कहाँ पहुंच जाते हैं। और ये सिर्फ ये तो एक्शन वाला था। अगर कई बार हम शब्द कहते हैं, कोई सेंटेंस कहते हैं, उसके तो इतने डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। और मैं अक्सर ये कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ आज भी ट्राई करता हूँ। यकीन मानिए, जिस तरह पार्टीज में म्यूजिकल चेयर फेमस है ना, उस तरह ये टेलीफोन आज भी कॉलेज में फेमस है। आज भी इसको ट्राई करने में उतना ही मजा आता है, और ये सिखाने में कि देखो कहा क्या था। और सिर्फ 4 शब्द, 5 शब्द, इससे ज्यादा नहीं, उसमें ये मायने कैसे बदल जाते हैं, क्योंकि हमने सुना नहीं या कहीं ठीक से समझा नहीं और वो बात आगे बढ़ी नहीं। तो मैं आपको कम्युनिकेशन की, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की 8 इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं। और ये टिप्स है बहुत सिंपल, बहुत रोजमर्रा की, बहुत बेसिक सी। इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो या आसानी से आप अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हो। तो टिप नंबर 1, नो योर ऑडियंस। सबसे पहला चीज है, आप जिसको मिल रहे हो, खासकर प्रोफेशनली ना, इवन पर्सनली, मान लीजिए आप घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और ये आपके घरों में ना अक्सर शादियों में होता रहता है कि बुआ नाराज हो गई और फूफा बुरा मान गए और ये हो गया। दिस इज योर ऑडियंस। जब आप होस्ट हो तो ये पूरी जो महफिल है, आपकी मौसी का कमरा अलग नहीं मिला, या आपने अपने बॉस के लिए टाइम पे नहीं पहुंच के आपको एक कोई किट लेके पहुंचनी थी, आप नहीं पहुंचे, या आपके बॉस कहीं बाहर से आ रहे हैं, उनको कोई एक पर्टिकुलर सेट तरीके से रिपोर्ट चाहिए थी, ये आपने नहीं बनाए, उनको एक चीज किस तरह से पसंद है वो आपने नहीं किया। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। आपके कॉलीग्स, आपके दोस्त, आपके आसपास के सारे लोग, पहले उनको समझिए, नो योर ऑडियंस, कौन है आपकी ऑडियंस, और फिर उनसे कॉन्वर्सेशन करिए, फिर कम्युनिकेशन करिए। जब हम ये बात समझ जाते हैं कि ये मेरी ऑडियंस है, इसका ये समझने का लेवल है, और इसकी हम और बहुत सारी चीजें समझेंगे किस ऑडियंस से रिलेटेड क्या क्या चीज होती है, तो ये सारा कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। तो रूल नंबर 1, टिप नंबर 1, नो योर ऑडियंस। टिप नंबर 2, लैंग्वेज, उनकी भाषा क्या है। और ये तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत खास है। और प्रोफेशनल वर्ल्ड क्या, आप आजकल आप पर्सनल वर्ल्ड में देखो, सोशल मीडिया पे बच्चों के बहुत सारे अकाउंट में कुछ बड़े हैं, आप वहां क्या भाषा यूज कर रहे हो। आप जब दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भाषा यूज करो और बड़ों के सामने भाषा यूज करो, वो अलग है। लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड में और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी की भाषा क्या है। हिंदी और अंग्रेजी में अगर आप बात करते हो, या आपकी मदर टंग में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने चेन्नई वाली, वो चेन्नई मतलब तमिलनाडु में काम किया, तो तिरुपुर और ईरोड 2 शहर में पहली बार गया। मुझे तमिल नहीं आती, और जहां मैं गया उनको हिंदी नहीं आती। तो हमने बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी में, लिटरली ऐसा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, सेल्स डन, ऑर्डर टू बी गिवन, ऐसे वर्ड्स छोटे छोटे इस्तेमाल करके हमने कम्युनिकेशन किया। लेकिन हमने एक इंटिमेसी बनाई उसमें भी, कि हमारी भाषा एक इतनी सिंपल हो, जो हमारे शब्द हो जो एक दूसरे तक पहुंच सके। और क्योंकि मैं अपने काम से गया था, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे उन तक अपनी बात पहुंचानी थी। इस और चीज में बहुत मजा आता है कि भाषा के साथ कई बार डायलेक्ट आ जाता है, एक तरह का टोन आ जाता है। तो मेरा जो ड्राइवर एक जमाने में था वो भोजपुरी था,
तो जब मुझे उससे बात करनी होती थी ना, तो मैं बहुत दिनों तक उसके सुनता रहा और वो क्या खास शब्द इस्तेमाल करता है जब वो फोन पे बात करता है। तो जब मुझे कुछ चीजें उससे इंपॉर्टेंट कहनी होती थी, जो काम जैसे ओवर टाइम करवाने होते थे कभी, तो मैं उससे भोजपुरी के वो शब्द इस्तेमाल करके कहता था जिससे उसे अच्छा लगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं आपस में, एक दूसरे के साथ काम करके, ऑफिस में, वर्क एनवायरनमेंट में और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में। तो खास करके आप जिस एरिया में जा रहे हो, अगर वहां का कोई डायलेक्ट है, जैसे भोजपुरी का बहुत बड़ा मीम हो गया कैसन बा, you know, now कैसन बा is like how are you, it's like so simple but everybody knows about it now. ऐसे ही आपको बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ। मेरा पहला फॉर्मल एजुकेशन कॉलेज और पढ़ाई के बाद हुआ जब मैं गुजरात स्टेट में काम करने गया। मैंने गुजरात और पंजाब जैसे एंटरप्रेन्योर स्टेट नहीं देखे हैं जहाँ कोई एमबीए नहीं है, कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा विद्वान लोग बैठे हैं वहां पे। उनको बिजनेस की समझ, कम्युनिकेशन की समझ हमसे कहीं ज्यादा है। तो जब वहां देखा और उनको सीखा, उनको समझा और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में काम किया, तो कुछ शब्द, कुछ चीजें, कुछ उनकी ऐसी सीखी जो अच्छी हैं, और जब उनसे बात की जाए तो उनको अच्छा फील कराए। टिप नंबर 3, आपकी टोन। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप क्या कहते हैं उससे मैटर नहीं करता, आप किस लहजे में कहते हैं वो मैटर करता है। तो आपकी टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह से कह रहे हैं, आपका नजरिया, आपके अंदर की फीलिंग आपकी टोन बता देती है। आप इरिटेटेड हैं, आप काम हैं, आप कम्युनिकेशन में दोस्ती चाहते हैं, या आप सिर्फ इस काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज बार बार कह रहा हूं, इट्स नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। बहुत सिंपल सी चीजें हैं हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन की। हम कई बार जब अपने कहने पर आते हैं तो हम इतने मगन हो जाते हैं कि हम फर्राटे से बिना नॉनस्टॉप बोले चले जाते हैं, ये देखे बगैर, ये समझे बगैर, ये सोचे बगैर कि सामने वाला पता नहीं कितना समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। ये थिएटर में सिखाते हैं, पर मैं कभी थिएटर नहीं गया, मैंने सिर्फ प्रोफेशनल वर्ल्ड में सीखा कि वॉइस मॉड्यूलेशन कब, कहाँ, जोर से, क्लियरली, किन शब्दों पर ज्यादा स्ट्रेस देना है, किस बात को बार बार रिपीट करके उस बात को सामने वाले के दिल तक पहुंचाना है। और बीच में जरूरी है छोटे छोटे पॉजेस ले लें, पूछ लें सब ठीक है, आपको समझ में आया, सब बढ़िया चल रहा है, रुक जाए, कुछ पूछना है। बहुत सिंपल सी ये चीजें हैं जो एक अच्छे कम्युनिकेशन का ढांचा बनाती हैं। और अच्छा कम्युनिकेशन मतलब इफेक्टिव, आप जो काम करने गए हो उसमें आप सक्सेसफुल होकर आओ, वो काम आपका पूरा हो, वो बात आपकी पूरी हो, यही है एक अच्छे कम्युनिकेशन की बात। तो वॉइस मॉड्यूलेशन और टोन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बेसिक बॉडी लैंग्वेज के साथ, जो है टिप नंबर 4। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, आप पोल अच्छे रहे हो, लेकिन आप है ना ऐसे आराम से, जैसे मैं अभी अगर ऐसे लेट के आपसे बात करके और ऐसे पसर जाऊं यहाँ पे, यू नो, इट इज नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, इट इज नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू दिस ओकेजन। तो मुझे किस वक्त में क्या बॉडी लैंग्वेज चाहिए, मेरी बॉडी से वो इमोशन आ रहे हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं। माई बॉडी ट्रांसमिट्स इमोशंस, मेरी बॉडी आपको एक एनर्जी देती है, तो मेरी बॉडी आपको अच्छी वाइब दे रही है कि नहीं दे रही। या मैं टाइम पास कर रहा हूँ आपके साथ, अभिषेक सर ने बुला लिया है, राजीव सर आप अच्छे लगते हो, चलो एक सेशन कर लो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का, और मैंने कहा अच्छा चलो यार टाइम पास है कर लेते हैं यहाँ पे। या मैं वाकई इन्वॉल्व हूं, मैं अपनी वाइब आपसे शेयर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे बॉडी लैंग्वेजेस हैं, आप गूगल करना और आपको पता चल जाएगा कि कोई इंसान जब झूठ बोल रहा हो तो उसके बॉडी के मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं, कोई आपको घूर कर देख रहा हो तो उसका मतलब क्या है। एक बहुत फेमस एग्जांपल है, कभी आप अगर गूगल करके देखो, राजीव गांधी जब पहली बार अमेरिका गए और अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले तो उन्होंने चश्मा लगाए रखा और उन्होंने वो चश्मा उतारा नहीं, और जब वो होकर आगे ट्रिप होगी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बाद में कहा कि मैं उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि हम जब किसी से कनेक्ट करते हैं तो हमारी आंखें पहले बताती हैं कि हम कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
और ये सोचिए इतने बड़े लेवल की बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लेवल पे वो गलती हो सकती है कि उन्होंने चश्मा नहीं उतारा और वो कनेक्शन नहीं हुआ और हम दोस्ती करने गए थे और हमारी दोस्ती नहीं हुई। तो ये वाली जो चीज है, और मैं फिर से मैं कह रहा हूं, ना मैं यहाँ कोई रिलीजियस बात कर रहा हूँ ना पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी लास्ट जब प्रेसिडेंट थे ट्रम्प, जब मोदी वहां पे गए तो उन्होंने दोनों ने हाथ पकड़ के एकदम जय वीरू वीरू स्टाइल में वो स्टेडियम में जो चक्कर लगाया, वो बॉडी लैंग्वेज अलग थी, वो बॉडी लैंग्वेज दोस्ती बताती है। तो ये फर्क होता है, ये सारी चीजें हैं। कोई आपको ऐसे देख रहा हो कि क्या बेवकूफ है यार ऐसे बात कर रहा है, देन यू नो दीज आर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी, आप अनजाने में भी आपकी बॉडी बात कर रही होती है कि आप कितना इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो प्लीज ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वाइब पॉजिटिव हो। टिप नंबर 5 का पंच है, आप कितना भी इमोशन छुपाना चाहो, आप कितना भी स्ट्रेट फेस रख लो किसी कॉन्वर्सेशन में, किसी ना किसी बात पे आपका कोई इमोशन झलक ही जाएगा, चाहे वो आपके होठों की ये लाइन से, चाहे आंखों के नीचे की लाइन से, या जनरली आपके फेस के किसी एक्सप्रेशन से आपका इमोशन झलक जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि आप, और ये खास होता है जो भी हम इस प्रेजेंटेशन के शुरू होने के पहले बात कर रहे थे, अभिषेक सर ने कहा नेगोशिएशन पर कुछ करना है, ये नेगोशिएशन में तो बहुत खास होता है। पत्ते खेलते टाइम बहुत खास होता है, आप पकड़े जाते हो। तो ये बहुत जरूरी है आपके इमोशंस मैनेज करना। और जब अच्छे इमोशंस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन में अच्छे इमोशंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हॉस्टाइल या इनडिफरेंस वाले जो इमोशंस हैं दोज आर नॉट गुड, और उस पर आपको ध्यान रखना है। आप ही रख सकते हो ध्यान, कोई नहीं रख सकता है। प्लीज रिमेंबर, ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आप किसी के ऊपर डाल नहीं सकते, अरे यार उसने ना, वो उसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी, अरे वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है यार, आपका काम, आपका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो ध्यान आपको रखना है। अभिषेक सर, ऑल गुड टिल नाउ? यस सर। मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ? नहीं सर, बढ़िया, ऑल गुड। ठीक है, थैंक यू। जस्ट अ हाइजीन चेक इन बिटवीन, यू नो, थैंक्स। टिप नंबर 6 बहुत सिंपल सी है, कंटेंट इज किंग। प्लीज ध्यान रखिए, आप क्या कह रहे हो, कितना क्लियरली कह रहे हो, कितना एंगेज करके कह रहे हो, वही इंपॉर्टेंट है। आप ढेर सारी इंफॉर्मेशन 2 मिनट में डाउनलोड करवा दो और उसी का एक ब्रीफ समरी आप 1 मिनट में डाउनलोड करा दो, क्या इंपॉर्टेंट है आप डिसाइड करिए। मैंने कम बोलना धीरे धीरे प्रोफेशनली अपने वर्ल्ड में सीखा। मैं लिखता हूं तो मेरा लेटेस्ट गुरु था लिखने के लिए कि कम शब्दों में वही बात कैसे की जाए, वो है ट्विटर। एक जमाने में ट्विटर के सिर्फ 140 कैरेक्टर्स अलाउड होते थे, और जो मैं फेसबुक पे एक पैराग्राफ पे लिखता था या मैं कहीं और ब्लॉग में एक पेज पे लिखता था, उन्हीं चीजों को मुझे 140 कैरेक्टर्स में लिखना होता था। आइडियली वही इमोशन, वही कंटेंट लिखना होता था। और यकीन मानिए, मैं ट्विटर को अपना गुरु मानता हूं कि मैंने बहुत सारा वहां से कम लिखना सीखा, और मेरे पैराग्राफ्स भी छोटे हो गए और मेरे पेजेस भी छोटे हो गए। तो कम शब्दों में अच्छी, कंसाइज, इंपैक्टफुल बात कहना वो इंपॉर्टेंट है। आई लव यू सिर्फ आई लव यू से ही किया जा सकता है, उसके लिए ऊपर आप कितनी ग्रंथियां लिख लो, लेकिन कहावत वही है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। So it's as simple as that. कम शब्दों में इंपैक्टफुल बात करिए, और जब आप कम शब्दों में बात करेंगे तो सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस बात पे बात रखने की, फिर वो बात क्लियर होगी, बढ़ेगी, और आपकी वो कम्युनिकेशन इंपैक्टफुल हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। टिप नंबर 7, हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। मुश्किल वक्त में हंसते हंसते भी बात हो जाती है। कोई चीज अटक रही हो, कोई बात नहीं बन रही हो, कोई सीरियस हो, कोई आपकी इस तमाम कोशिश के बाद भी आपके मूड में नहीं आ रहा हो, आपकी बात में नहीं आ रहा हो, तो एक छोटी सी बात हंसते हंसते कोई आपस में कि सर क्या बात है, कहीं उलझे हुए क्या, आज बीवी ने टिफिन ठीक दे दिया क्या? थिंक ऑफ समथिंग विच इज नाइस। व्हेन यू नो योर ऑडियंस, यू विल नो समथिंग अबाउट दैट पर्सन।
ओके, तो ऐसी कोई छोटी सी बात, क्या सर आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, क्या अभिषेक सर आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, यू अंडरस्टैंड? एक छोटी सी बात कहीं से अच्छी सी हल्की फुल्की मजाक में आगे बढ़ाई जाए, और कहते हैं कि लाइफ इज वेरी इजी विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आपको लाइफ में कोई परेशानी नहीं होगी, एंड लाइफ इज बेटर विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो प्लीज इतना सीरियस मत होइए, लाइफ आपको सीरियस नहीं लेती है। हैव अ लिटिल सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा हंसी मजाक लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। जो मैं अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर सकता हूं, मैं अभिषेक सर के साथ नहीं कर सकता। वो मेरे एक दायरा है, हर रिश्ते का एक दायरा है। जब मैं आप दोस्तों के साथ मिलूंगा कभी ऑफलाइन सेशन में, अपन कभी मिलेंगे, तो आपके साथ एक रिश्ता जो होगा वो अलग होगा, और उस वक्त मिलेंगे, आज जो मिलेंगे जहां मैं आपको देख भी नहीं पा रहा हूं, तो वो रिश्ता अलग है। ऑलराइट, लेकिन हंसते मुस्कुराते जिंदगी में काम बढ़ाते जाइए, सीरियस मत होइए, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर जरूर रखें। टिप नंबर 8 और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो प्लीज भूलना मत, बाकी भी मत भूलना, पर इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलना। यही है जहां से शुरुआत होती है, इट्स योर स्माइल। अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, रोज शीशे के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करिए। यू नो, यू लुक अमेजिंग व्हेन यू स्माइल, इट लुक्स सो गुड ऑन यू। आप खुद ये ट्राई करके देखना, आप कितने हैंडसम या गॉर्जियस दिखते हो जब आप मुस्कुराते हो। आपकी फेस वैल्यू ना, ऐसे बल्ब जल जाते हैं ढेर सारे जब आप मुस्कुराते हो। आपकी मुस्कुराहट जो है वो एक वो कर्व है जो सारी सीधी लाइन ठीक कर देती है। हर मुश्किल को आपकी एक स्माइल सॉल्व कर सकती है। कभी है ना, ट्रैफिक में फंसे हो, और ये दिल्ली में अक्सर होता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ, अब तो हर शहर में होने लगा है कि कोई जा रहा है और रास्ते से ना गाड़ी नहीं निकल रही है और कोई चिल्ला रहा है, आप सिर्फ अपनी कार में, गाड़ी में, स्कूटर पे बैठे बैठे आप उसको सिर्फ स्माइल करके हेलो बोल दीजिए, कुछ मत करिए। और अगर वो कुछ कॉन्वर्सेशन भी कर, बोलिए सर 2 मिनट रुक जाइए अभी निकल जाएंगे, मैम 2 मिनट में निकल जाएंगे, मैम 2 मिनट की बात। ट्राई करके देखिए, कोई चिल्लाता हुआ जा रहा हो ना ऐसे, तो उसको ऐसे बस हाथ जोड़ के नमस्ते करके मुस्कुरा दीजिए। मैं बता रहा हूँ उसका दिन अच्छा जाएगा, वो आपको याद रखेगा या रखेगी जो भी होगा। सो रिमेंबर दिस, a smile is medicine for anybody else। कोई कहां से, घर से, ऑफिस से, पता नहीं कहां से झगड़ा करके निकला हुआ, आपकी एक स्माइल किसी अनजान इंसान को भी उसका दिन बेहतर कर सकती है। और याद करिए, याद रखिए, कोई भी अजनबी हो, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। कई बार ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं, कहीं जाना हो, कहीं सफर कर रहे हो, ट्रेन में अक्सर होता है मेरे साथ कि बैठे हो तो पहला रिएक्शन एक स्माइल ही होता है, किसी को मिले तो स्माइल किया, फिर उसके बाद हेलो होता है। तो स्माइल बता देती है कि इंसान से दोस्त बात की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। इट्स द फर्स्ट कम्युनिकेशन व्हिच हैपेंस विद अ स्माइल, दैट डिसाइड्स कि आप कम्युनिकेशन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और मजेदार चीज यह है कि स्माइल की कोई भाषा नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है इसकी, सब जगह एक जैसी है। सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, स्माइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल सम अप हमारी जो 8 टिप्स हैं कम्युनिकेशन की। अपना ऑडियंस जानिए, उसकी भाषा में, उसके डायलेक्ट में, उसके लहजे में बात करने की कोशिश कीजिए, उसके लहजे को समझिए, उसकी भाषा को समझिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको कि मैंने नया नया गोल्फ के बारे में सीखा था। अगर आप लोग गोल्फ के बारे में जानते हो या किसी भी गेम में जैसे होता है, तो मैंने गोल्फ के बारे में नया नया सीखा था। तो गोल्फ में बताते हैं, गोल्फ में एक शब्द होता है हैंडीकैप, कि आपका हैंडीकैप क्या है। मतलब आप वो जो होल्स में आप बॉल लेके जाते हो, तो आप कितने शॉट्स में वहां लेके जाते हो, तो उसमें एक शब्द होता है हैंडीकैप। ये शब्द कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत आसानी से यूज होता है कि वॉच योर हैंडीकैप, वॉच योर हैंडीकैप। तो मैंने नया नया सीखा था, तो मैंने अपने किसी रिश्तेदार पे आजमाया, उनको ऐसे ही पूछ लिया, बहुत दिनों बाद मिला था, तो मैंने, वो कुछ बात कह रहे थे कि किसी चीज में उनको तकलीफ हो रही थी, तो मैंने बताया उनको कि सर दैट इज योर हैंडीकैप। तो बहुत जोर से बुरा मान गया कि हैंडीकैप का मतलब, आप समझते हैं हैंडीकैप का मतलब क्या होता है? हम डिसेबल्ड या डिसफॉर्मिटी या ऐसी चीजों को कहते हैं, और मेरे कहने का मतलब कुछ और था। तो मेरी समझ और उनकी समझ में जमीन आसमान का फर्क।
तो ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि हमें अपनी समझ से नहीं, सामने वाले की। और अगर ये गलती का एहसास हो गया तो फौरन उसको करेक्ट कर लेना चाहिए और उसको नए तरीके से समझाना चाहिए कि बताते हुए, अरे नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, आप गलत समझ जाए, क्योंकि थोड़ा सा डैमेज तो ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, आपने जब वर्ड यूज किया और उनको समझ में नहीं आया तो उनकी फीलिंग्स तो हर्ट हो गई हैं अभी, तो वो डैमेज को रिपेयर भी करना है। तो फिर अपनी टोन ठीक कर लीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज कर लीजिए, कोई दोस्त है तो उसको हक कर दीजिए, इमोशंस मैनेज करिए, पॉजिटिव होने चाहिए, कम बात की जाए, अच्छी की जाए, हंसते खेलते की जाए और मुस्कुराते हुए की जाए। ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो करना हो, पर इसे प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि याद रखिए हमारा आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अपने स्मार्टफोन को प्रूव करके दिखाना है कि हम उससे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी बाकी बची जिंदगी का आज पहला दिन है और मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे खुद को एक्सेल करना है। मेरी फेवरेट मूवी है 3 इडियट्स, और उसमें उसके जो कुछ डायलॉग्स हैं वो वाकई आत्मसात करने जैसे हैं। काबिल बनो, काबिल, कंपटीशन नहीं चाहिए, काबिल बनोगे तो कामयाबी आपके पास आएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो काबिल बनिए, मेरी दुआएं आप लोगों के लिए कि आप लोग काबिल बने और आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि उसका रिजल्ट एक ही है, विच इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल रिजल्ट है जब आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। और ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिए, 3 महीने में यू विल सी द रिजल्ट। ये कोई दवाई या फॉर्मूला ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट ऑन प्रैक्टिस। जब आप एक चीज करने लगते हो ना और कोई आपकी तारीफ कर देता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ अच्छी चीज है, दोबारा करते हो, फिर दोबारा करते हो, फिर आपकी आदत बन जाती है। तो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। और एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसे मैटर करता है, कहाँ, लोकेशन, ऑडियंस के साथ में, ये देखिए। है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन? किस तरह एक मैसेज को पहुंचाया जाए एक सिंपल सी चीज से। कैडबरी का कुछ मीठा हो जाए हमारी आम जिंदगी से उठाया हुआ है, जहां हम रोज कहते हैं खाना खाने के बाद कि कुछ मीठा हो जाए। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये जिंदगी की बहुत छोटी सी चीजें हैं, और इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल में क्या फर्क है आप सबको पता है। फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए आज इस प्रेजेंटेशन के लिए डिफरेंस एक बार फॉर्मली कवर कर लेते हैं एज अ एकेडमिक पर्पस। बिजनेस लाइक होना चाहिए, सीरियस है, स्ट्रक्चर्ड है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, अपराइट लैंग्वेज है, सीरियस टोन है, उसमें एक बहुत फॉर्मल सी चीज है। ठीक है, और इनफॉर्मल कुछ भी हो सकता है, बिचिंग हो सकती है, गॉसिप हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन क्लोजनेस, कुछ भी, कोई भी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, बिना सर पैर की कुछ भी हो सकती है। इनफॉर्मल इज प्योरली डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप। आपकी क्या इंटीमेसी लेवल्स हैं, आपकी क्या क्लोजनेस लेवल्स हैं, दैट्स एज सिंपल एज दैट। और आज ये वर्क फ्रॉम होम के जमाने में एक फ्यूजन हो गया है, जहां है ना घर में हम जूते पहनने की जगह चप्पल पहनने लगे और मोबाइल जो है वो हमारा ऑफिस बन गया है। सो देयर इज अ फ्यूजन। एक वर्क फ्रॉम होम या स्टडी फ्रॉम होम या लिविंग फ्रॉम होम, कोरोना की वजह से ये जो पूरा एनवायरनमेंट आया है, और ये रहेगा,
ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है ना, कंप्लीटली जाएगा नहीं। ये इसने हमें नए रास्ते, नए आयाम सिखाए हैं कि किस तरह हम घर से रह के भी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, हमारी कंपनीज को बेहतर बना सकते हैं, हमारा काम इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये अब फ्यूजन हो जाएगा कि ऑफिस, आपको शायद बहुत सारी फील्ड्स में ऑफिस रोज जाना ही नहीं पड़े। बहुत सारे लोग तो ऑफिस स्पेसेस गिव अप कर रहे हैं कि घर से बेटर है, हम घर में एडिशनल फैसिलिटीज दे देंगे। इस वक्त कॉल सेंटर्स जो हैं वो घर से ऑपरेट हो रहे हैं। मैं कई बार, मेरे पास फोन आते हैं कई कॉल सेंटर्स के, तो पीछे लगा मंदिर की घंटियां बज रही हैं, कहीं अजान की आवाज आ रही है, कहीं मार्केट की आवाज आ रही है, तो समझ में आ जाता है कि ये सारी जो सेटअप्स हैं ये घरों में शिफ्ट कर दिए गए। कपड़े तो हालत है ही, जो मन आया ऊपर ठीक दिखना चाहिए, और मैंने हालांकि दोनों ठीक पहने हुए हैं आज के प्रोग्राम के लिए, पर यूजुअली दिस इज द कंफर्ट लेवल व्हिच इज देयर, यू नो। तो कुछ भी हो, एक चीज ध्यान रखिए, जब भी फॉर्मल मीटिंग में, आप वर्क फ्रॉम होम में भी हो, आपकी रेगुलर ऑफिस मीटिंग्स हैं, ठीक है आप मैनेज कर रहे हो, लेकिन कहीं कोई फॉर्मल मीटिंग हो तो कुछ चीजें जरूर ध्यान रखिए। ये शर्ट वगैरह, फॉर विमेन ऑल्सो, ड्रेस अच्छी हो, सब कुछ हो, घड़ी भी पहनी हो, जूते भी पहने हो। इसलिए पहने हो कि जूते आपको एक सीरियस बॉडी लैंग्वेज देते हैं, आपको एक सिग्नल देते हैं कि यू आर इन अ सीरियस मोड जब आपने वो पहन लिया है। और ऐसे ही आप चप्पल पहन के और जनरली पैर फैला के बैठे तो आपको वो सीरियस सिग्नल ही नहीं आ रहे बॉडी से। तो ये खासकर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो, जब क्लाइंट्स वगैरह की हो या कोई प्रेजेंटेशंस हो, तो ये सारी चीजें अभी भी मैनेज करिए। फॉर्मल इनफॉर्मल ईमेल्स हो गई हैं, काफी लाइंस ब्लर हो गई हैं, अब फिर भी जहां डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है वहां करिए, पूरा रिस्पेक्ट रखिए, और ट्रूली वार्म रिगार्ड्स विद लव वगैरह अवॉइड करिए। रिगार्ड्स बहुत होता है, उतना काफी है। और जहां आप इनफॉर्मली कोई बात करना चाहें वहां आप दायरा क्रॉस कर सकते हैं, बट यू हैव टू सी दैट द रिलेशनशिप इज क्लोज एंड यू कैन मैनेज दैट। सोशल मीडिया ओवरलैप इतना ज्यादा हो गया है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, हमारी फैमिली के बारे में, हमारी पोस्ट के बारे में, हम सब के बारे में, और हम भी दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमारी दुनिया बड़ी हो गई है, हम भी अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। तो वहां भी ध्यान रखिए। मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी डांसर है, वो कहीं पढ़ाने भी जाती हैं, तो वो उन्होंने एक प्रोफाइल, वो फेसबुक पे जब पोस्ट करती हैं तो बिल्कुल फॉर्मल फॉर्मल करती हैं, पर इंस्टाग्राम पे वो अपने सारे डांस वांस पोस्ट कर लेती हैं। तो उन्होंने ये सेग्रीगेशन किया है क्योंकि उनकी एक ऑडियंस जो है उस हिसाब से उनको मैनेज करना है। तो इसी तरह हमें भी ये ध्यान रखना है कि कहीं हम ये ओवरलैप में कहीं कोई चीज ऐसी तो नहीं कर रहे जिससे हमारे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ रहा हो या प्रोफेशनल से पर्सनल एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ रहा हो। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि ओवरलैप हो चुका है। पर रिलेशनशिप कोई भी हो, मतलब सिचुएशन कोई भी हो, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, एक चीज ध्यान रखिए, रिलेशनशिप्स मैटर। कुछ भी हो, फॉर्मल इनफॉर्मल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक रूल है, ये 3 शब्द आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट है। भूख लग रही है सबको, शाम की चाय वाय का टाइम हो गया है, बट एक्चुअली दीज आर नॉट द इंपॉर्टेंट वंस। ये नहीं है, यही होंगे। आप लोग बहुत सारे लोग यंग हैं, यू नो, तो आई एम श्योर इस वक्त जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स यही होंगे, पर यकीन मानिए ये भी नहीं है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, चाहे इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, सबसे ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आई एम सॉरी। कोई भी चीज की गलती चाहे कितनी स्टूपिड क्यों ना हो, मान लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज के लिए, आप कहीं जा रहे हो, भीड़ में हो, कोई बात हो गई है, वो है ना, जाने भी दो यारो, एक फिल्म में बहुत फेमस, तो रिमेंबर दीज 4 वर्ड्स, जाने भी दो यारो, लेट इट बी यार, जस्ट से आई एम सॉरी एंड मूव ऑन, खत्म। कोई क्या फर्क पड़ता है उससे? कौन सा पहाड़ टूट गया है ना, मतलब अजनबी लोगों को तो मैं दोबारा मिलूंगा भी नहीं, और जो अपने हैं वो मैटर करते हैं, तो उनसे क्या बुरा, राइट? People I don't know, I'll never see them again. People I know matter, so it doesn't matter to me. It's as simple. और इन I am sorry के साथ में 3 वर्ड्स और याद रखिए, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी। ये आपकी लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का पहला स्टेप सिखाने के लिए मददगार है।
अगर हमें कोई अंग्रेजों ने अच्छी चीज सिखाई तो थैंक यू, प्लीज सिखाया उन्होंने हम, बाकी तो ठीक है जो भी सिखाया तो सिखाया, but thank you and please and excuse me are very very important, but I am sorry is the most important. When it comes to teachers and trainers, this is a section which has been developed specially for you on request of Abhishek sir कि क्योंकि trainers हैं उनके लिए कोई खास मैसेज हो अगर, तो बहुत सिंपल है. जब आप स्टूडेंट्स को डील कर रहे हो, आप 9वीं से 12वीं से स्टूडेंट डील कर रहे हो, आप अलग अलग स्किल लेवल्स के स्टूडेंट्स को डील कर रहे हो, तो आपका एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी है यंग अडल्ट्स को ट्रेन करने का, जहां आप एक फ्रेंडली ओपन सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो, जहां आप काफी सारी एक्टिविटीज करते हो उनको एंगेज करने के लिए, जहां आप टीम वर्क क्रिएट करते हो, जहां स्टूडेंट की फीडबैक ली जाती है, उनको पॉजिटिव सजेशंस दिया जाते हैं, एक पर्सनल बॉन्डिंग होती है. ये सारी चीजें आप लोग करते ही हो, या आपके फ्रेमवर्क में ही है या आपके स्ट्रक्चर में. मैंने खुद विजिट किया है और देखा, तो मैं तो खुद मतलब आई नो हाउ ब्यूटिफुली इट वर्क्स, राइट. पर इनके अलावा, इस खांचे के अलावा, इस फ्रेम के अलावा, इस बॉक्स के अलावा आपके लिए 2 टिप्स हैं. बहुत सिंपल है, सिर्फ 2. ये सिर्फ टीचर्स और ट्रेनर्स के लिए हैं, और मैं 1+1 इसलिए कहता हूं कि ये एक्चुअली है 1 ही, पर इसको 1+1 के साथ आपको फ्री दे दिया. ये ऑफर में आपके लिए. सो दिस इज अ 1+1 ऑफर फॉर यू. पहला है बी अ स्टोरी टेलर. यू नो, कोई कहानी अगर आप एकेडमी, हमें वो टीचर याद है जो हमें एक अच्छे से उस चैप्टर को समझा के सुना के कहानी के रूप में बता देता था, वो चैप्टर भी हमें समझ में आ जाता था. इसी तरह कोई प्रोजेक्ट है, कोई कोर्स है, कोई स्किल का वो है, आप अपने प्रोग्राम को एक कहानी के प्रारूप में बना लीजिए. टेल अ स्टोरी. उसको टू डू मत करिए कि ये करना है ऐसे मत करिए. इसको अपन इतने खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं और किया जा सकता है, वैसे बताइए. जब आप उसको खूबसूरती से प्रेजेंट करेंगे, एक कहानी के प्रारूप में प्रेजेंट करेंगे, तो यकीनन उसको समझ में जल्दी आएगा, उसको एब्जॉर्ब होगा, वो अपनी लाइफ में उसको ज्यादा इंपैक्टफुल बना पाएगा या बना पाएगी. दूसरा, ये 1+1 ऑफर है, याद रखिएगा. पहला था बी अ स्टोरी टेलर, दूसरा है बी एन ऑब्जर्वर. You have to be, as a teacher and a trainer, you have to be an observer. आपको बच्चों का स्किल सेट, बच्चों का टैलेंट, बच्चों की एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी, बच्चों का प्रेजेंस एब्जॉर्ब करने की क्षमता में अपने आप को पारंगत करना पड़ेगा. आप ऑलरेडी होंगे, आई एम श्योर आपके प्रोग्राम्स कर रहे होंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको अपने स्मार्टफोन से ज्यादा स्मार्ट होना है, तो आपको अपग्रेड करना होगा. और ऑब्जर्वेशन से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं बच्चों से. कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती हैं, और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से या बच्चों के इन्वॉल्वमेंट से मालूम पड़ती हैं. कई बार ये चीजें घर में भी होती हैं. How many words? 3 words. 4. 4, okay. Hindi, English? Hindi, okay. Sugar? First word. Papa. Papa, baby. Baby. पापा से छोटा. पापा से छोटा. Raju Chacha. चाची 420. चाचा भतीजा. Chacha Bhatija. No, first half. Chacha. Chacha, okay. First word, chacha. Chacha. Okay. Okay. Second word. Mine. Hindi. Papa ka? Me. तेरा. तेरे मेरे सपने? मेरे? Chacha, mere. Third word, okay. T-shirt. Jeans. Shirt. No. कपड़े? कपड़े. Right? कपड़े. Okay. चाचा मेरे कपड़े? ये ऐसी तो कोई फिल्म नहीं है. बच्चों की खामोशी बहुत कुछ बोलती है, उन्हें ध्यान से सुनिए, कहीं कोई अपना ही उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा. चुप ना रहें, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से लड़ें. बच्चों की खामोशी बहुत बोलती है, सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी चीजें बोलती है. ऑब्जर्व करिए, दैट इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. और यकीन मानिए, जितना मैंने सीखा समझा, उसमें आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग. इफ यू कैन गेट योर कम्युनिकेशन राइट,
you got your life absolutely right. Thank you very much. मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ. Over to you, Abhishek sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for your beautiful presentation and your speech. देखा ही आपने सर इतने सारे मैसेज, एवरीवन अप्रिशिएटिंग योर, आपका जो मैसेज था बहुत ही ब्यूटीफुली सब तक गया है, और आई एम वेरी श्योर दे विल डेफिनेटली टेक इनपुट फ्रॉम दिस स्पीच. So before moving to means I have also taken some notes of this today's sessions. तो डेफिनेटली एक चीज जो मेरी लाइफ में मतलब मैं हमेशा ऑब्वियसली जो आपने बताया एक्टिव लिसनिंग, इनफैक्ट हमारे भी कोर्स में एक पार्ट चैप्टर ही था एक्टिव लिसनिंग था. I will be more conscious about the listening part. Always I want to speak. So definitely I will take care of this input from today's sessions, and also upgrade myself as you shared. So I am very sure all our trainers and all the audience will upgrade and take the input from today's sessions. और जो आपने बताया इनहेरेंट टैलेंट को पहचानना बहुत जरूरी है हमारे स्टूडेंट्स और जो भी हमारे ट्रेनर्स सभी स्कूलों में या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में. सो यू हैव टू जो कम्युनिकेशन का आपका चैनल्स है, ऑब्जर्व आपको करना है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से. ये सभी चीजें जो आपको सर ने बताया, आई एम वेरी श्योर यू विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज इनपुट्स. सर, बिफोर क्लोजिंग वी हैव 2 क्वेश्चंस इन Q&A पैनल. सो आई विल so there is one question: how can you differentiate between emotions and sense of humor with example? Emotions and sense of humor. तो सेंस ऑफ ह्यूमर एक इमोशन है. इमोशन, गुस्सा एक इमोशन है, हंसना एक इमोशन है, खुशी एक इमोशन है. तो कैसे डिफरेंस करेंगे? जब मैं आपसे हंस के बात कर रहा हूँ, that's a happy emotion. Sense of humor is a happy emotion. It's as simple as that. ठीक है. तो इमोशंस बहुत सारे हैं, जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक इमोशन हैप्पी है. वो सेंस ऑफ ह्यूमर का एक पार्ट है सरकाजम. ठीक है. सरकाजम थोड़ा सा उतना हैप्पी नहीं है, लेकिन बहुत विटी होता है. सरकाजम के लिए बहुत अकल चाहिए. मतलब शेक्सपियर कहते थे सरकाजम सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के बस की बात है, आम आदमी के बस की बात नहीं है. सो सरकाजम इज नॉट अ वेरी हैप्पी बट अ वेरी विटी वे ऑफ, दैट्स एन इमोशन आल्सो. Thank you, sir. And second one is please share your presentations. So presentation is already YouTube channel पे already available है, पूरी recording है. Even still if sir is comfortable to share the presentation, I will share with your respective vocational coordinator and state teams. So I will circulate to all our state teams. And अभिषेक सर ने कहा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और क्यों शेयर करने से बेटर है हम दोबारा मिलेंगे ना, फिर से बात करेंगे, कुछ नए तरीके से करेंगे. आप कुछ नया अपग्रेड करेंगे ना, ऐप में कुछ नए फीचर्स भी तो आएंगे ना, फिर कुछ करेंगे. डेफिनेटली सर. तो ये सभी में अपने जो लोग जुड़े हुए हैं सर, इसका बहुत एग्जाम्पल है. करीब 1 घंटे तक हमसे 90% ऑडियंस कनेक्ट बनी रही. तो ये अपने आप में बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है कि एवरीवन एंजॉयड द टुडे सेशंस, एंड बहुत अच्छे कमेंट्स आपके लिए अप्रिशिएशन के आए हुए हैं सर. सर भेज दीजिएगा, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है तो भेज दीजिएगा. जी सर, उसमें आपको चैट बॉक्स में है अवेलेबल, बट आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो. रिकॉर्डिंग लाइव फेसबुक पे है एंड यूट्यूब पे ऑल्सो अवेलेबल रहेगी. एंड सो सर थैंक यू फॉर टुडेज सेशंस, एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल ओवर ऑडियंस कि आप अपने सभी जो आपके फ्रेंड्स हैं और आपके साथ वाले ट्रेनर्स हैं उनको आज के सेशन के बारे में फीडबैक दें, एंड ऑल्सो शेयर द यूट्यूब लिंक और फेसबुक लिंक, सो जो मिस कर गए आज के सेशन को वो सुन पाए. वी विल मेक श्योर कि ऐसे हम 2 मास्टर क्लासेस और भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट और भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ, जहाँ पे वो इतने अच्छे लर्निंग्स और इंसाइट्स हम सबके साथ शेयर करेंगे, और आप उन सभी से बहुत कुछ डेफिनेटली सबके पास पोटेंशियल, ट्रेमेंडस पोटेंशियल है टू अपग्रेड, टू इम्प्रोवाइज, टू गेट न्यू स्किल्स, री स्किल्स, अप स्किल्स, जो हम अपने सभी सेशंस में रखते हैं. सो थैंक यू एवरीवन हु ज्वाइन टुडे, and please share this with your friends and your colleagues. So we will definitely schedule another master class maybe in October or maybe first week of November. So before logging off, so just wishing you all happy. I just wanted to wish everybody a very happy festive season. आपको बहुत amazing दशहरा, धनतेरस, दिवाली सब मुबारक हो. सद्बुद्धि मिले, समृद्धि मिले, और अपने आप को अपग्रेड करो. बस that's it. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. We are logging off today. Thank you. Thank you. God bless you all.